Hello everyone, welcome to all of you in our today's video. Second chapter, from trade to territory, the company establishes power. Next topic, company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interest of the company. Through the residents, the company officials began interfering in internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then the part of the territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. कंपनी का फैलता शासन यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का ग्रहण यानी अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिज्ञ साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई जो 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिया। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावहारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनको इलाका कंपनी उनके जो अपने इलाके होते थे वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने जो 1798 से 1805 तक थे, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। फर्स्ट सब टॉपिक, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। द कंपनी resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom, and this allowed local merchants from trading with the company.
He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. Four wars were fought with Mysore: 1767 to 69 and 1780 to 84, 1790, 92, and 1799. Only in the last, the Battle of Seringapatam, did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and subsidiary alliance was imposed on the state. पहली उपविषय टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं। हैदर अली, जिनका शासनकाल 1761 से 1782 था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 था, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुकी थी। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान की इस कदम से अंग्रेज काफ़ी घबरा गए और साथ ही आग बबूला भी हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक देखने लगे। अंग्रेजों को लगने लगा कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना होगा और कुचलना भी जरूरी है। फलस्वरूप क्या हुआ? मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हो गई। एक 1767 से 69 तक, और एक 1780 से 84 तक, और एक 1790-92 से में, और वैसे ही 1799 में। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता भी मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडेयार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। नेक्स्ट सब टॉपिक, वॉर विद द मराठास। From the late 18th century, and company also sought to curb and eventually destroy Maratha powers, with their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761. The Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs, Sardars, belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad, and Bhosle. These chiefs were held together in confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahaji Sindhya and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in series of wars. In the first war, they ended in 1782 with the Treaty of Salwai. There was no clear victory. The Second Anglo-Maratha Wars, 1803 to 1805, was fought on the different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bittur near Kanpur with the pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. दूसरी उपविषय है मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के हार के बाद दिल्ली से देश का शासन हटाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी।
ये सारे सरदार एक पेशवा, सर्वोच्च मंत्री जिन्हें कहते हैं, के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख हुआ करते थे और पुणे में रहते थे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुई, कई नए मोर्चे पर लड़ी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का अधिकार हो चुका था। थर्ड सब टॉपिक, द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1830 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayanna, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. He will read more about several cases of resistance later in the book. In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next in the line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. The claim to paramountcy अर्थात सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे, उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर अधिकार करने का या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखता है या मानता है। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती भी है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में जो है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायक से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट भी किया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में पढ़ेंगे। 1830 के दशक में
अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डर गई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के कारण अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह जी थे। उन्होंने कंपनी की दाल गलने नहीं दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अधीन कर लिया। Fourth subtopic, the doctrine of lapse. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to known as doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of the company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853, and Jhansi 1854. Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. अंतिम मूवी से है विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर जो 1848 से 1856 के बीच चली, गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड डलहौजी, उनके शासनकाल में थी यह। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत के तहत यह सिद्धांत ने इस तर्क पर आधारित अपना विषय चुना, कहा कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो गई तो उसका कोई भी पुरुष वारिस अगर नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का वह हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर ही एक के बाद एक रियासतें सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहा। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को इस तरह से गद्दी से हटाया गया देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो आज हमने सेकेंड टॉपिक कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स के 4 सब टॉपिक्स को देखा। टीपू सुल्तान द टाइगर्स ऑफ मैसूर, वॉर विद द मराठाज, द क्लेम टू पारामाउंटेसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।